গত ইলেকশনে দেখতে পারি ভাই, দিদি বলতেছিল খেলা হবে, বাস্তবে কে খেলা হইলো? হইলো কি না হইলো? টিএমসি এখানে কোনো কম্পিটিশনে ছিল না, ছিল কি? কোন জায়গায় ঝান্ডা বেরো ছিল না, ছিল কি? দেখো তো ডেভেলপমেন্ট পুরুষ, ভোটের মানে কি? ভোটের মানে ডেভেলপমেন্ট, ভোটে কি নাই? এখন কি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, যে ভোট নাই দিয়েছে কি দিয়েছে তাদের দারুণ হচ্ছে কি নাই? এই সুদেশদার রাজনীতির কেন্দ্র এই ঝালদার থেকেই সুদেশদা আন্দোলন করে এসেছে। আমরাও সবাই এই ঝালদার বুকে আন্দোলন তুলেছি। আন্দোলন এবার ঝালদায় হবে কি নাই হবে? হাত দিলে বলে সবাই। খেলা নাই, এরা ভালো রকম খেলা করেছে। 239 কে 239 বুলের বাইরে ঝালদায় কিন্তু ওরা খেলা করতে নাই পাইছে। পাইছে কি? ঝালদায় বড় বুঝে খেলা করতে নাই পাইলো। আর খেলা যদি করি না দাদা, এসেছে আমার জিমা দিচ্ছি ভাই, গ্রামে গ্রামে বুথে বুথে আজের থেকে মিউনিসিপালিটিতে কবজা, পঞ্চায়েতে অঞ্চলে কবজা করো, গ্রামে গ্রামে চলো, সুদেশদাকে আহ্বান দাও কি অযোধ্যা পাহাড় থেকে যে আন্দোলনটা সৃষ্টি আবার করুক, আর গ্রামে গ্রামে সবাই যেন জাগো। নওজওয়ান, বুদ্ধিজীবী, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী, সিল্লি একটা ছোট জায়গা, সেটাই সুদেশদা এমএ ক্লাস শুরু করে দিল। গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি, গ্রামে গ্রামে ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, সব জায়গায় হচ্ছে কি না হচ্ছে? বলো, এখানে কি হচ্ছে? দিদি বলছে খেলা হবে। কি খেলা হবে রে বাবা? না চাকরি। ভোট দেওয়ার পর সব পালাই গেল গুজরাট, কে সুরত পালাইলো, কে আহমেদাবাদ পালাইলো, যে বাঁচলো কোথা গেল? দিল্লি গেল, যে বাঁচলো কোথা গেল? চেন্নাই গেল। আরো যে ছাড়াইল ওরা পালাইন করে কোথা গেল? রাঁচি গেল, মারা ফিরি গেল, টাটা গেল, পালাইন করে কোথা গেল? চান্ডিল গেল, সিল্লি গেল, পুন্ডু গেল, গেল নাই। তো চাকরিটাও যদি সুদেশদার এরিয়ায় যদি সব ছেলেরা করবে, তো ভোটটা দিদিকে কিসের জন্য? বলো কিসের জন্য? সুশান্ত মাতুকে কেউ দেখে নাই, দেখেছো কি? জিতা দিলে তো মনে হচ্ছে লকডাউনে আছে কি? জিতার পরে তো বেশি কথা বলছি না, সুদেশদার আগে আমি বললি सुदेश भैया जिंदाबाद, एक बार बढ़िया से लड़ना होगा। लड़ेंगे कि नहीं सबको? एकदम टाउन। हम चिरदिन आप लोग का सबका भाई आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जो जुलूसটা তোমরা বাইরে ছিলে আর যে কথাটা তোমরা দেখাইছিলে টাউনে, জালদা টাউনে, চিরদিন আমরা ঋণী। সুদেশদাকে আমি বলবো কি টাউনের ছেলে মেয়ে সবাই, কিংবা ঝালদা বলো, বাগমুন্ডি বিধানসভা, আর এই যখন জেলার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে, জেলা প্রেসিডেন্ট আছে, অতুল এসে গেল, আজ গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি সুদেশদাকে লড়াকু মানুষ, ঝাড়খণ্ডের লড়াকু লোক যখন এসেছে সুদেশদা लड़ीबाज जो न किसी को डरना नहीं, लड़ने से किसी को डरना है क्या? नहीं। वकील साहब आ गया है सच्चा तो भी हम पर অতুল দা বলে দিল যতগুলা যে হবে সুদেশদা আমাদের আছে। সুদেশদাকে শতবার অভিনন্দন, তোমরাকেও শতবার অভিনন্দন। আর টাউন কমিটি, খাস করে টাউন কমিটি, জেলা কমিটি, আমাদের বিধানসভা কমিটি, ভোট কমিটিকে অপার ধন্যবাদ। জোহার, জয় ঝাড়খণ্ড, জয় ভারত। সুদেশ ভাইয়া জিন্দাবাদ। छोड़ दो पेन। आज झालदा टाउन के इस कम्युनिटी हॉल में पार्टी के अभिनंदन और मिलन समारोह में मैं सर्वप्रथम हमारे नगर अध्यक्ष परमानिक जी, मंच में जिला के जितने लोग हैं, जिला के जितने पदाधिकारी, राजेश बाबू और इस क्षेत्र के प्रभारी सुनील जी, सुशील दा, सिद्धार्थ जी,
लक्ष्मण जी और हम सबके इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रार्थी आशुतोष बाबू और जरा आज योगदान करते आसे एक अनुभवी अतुल बाबू जरा बार एसोसिएशन सेक्रेटरी एक हिंदू जागरण मंचर এটা কর্মী এটা বড় অনুভব জীবনের অনুভব নিয়ে আজ ওরা নিজের সঙ্গী সাথীর সঙ্গে নিজের বিচারটা নিয়ে আজ যারা পার্টিতে যোগদান দিলেন অতুল বাবুকে নিজের দিকে অভিনন্দন অভিনন্দন মাস্টার মশাইকে যারা বললেন কি আমি তো রাজনীতির কোনো জানি না मास्टर बोलने तो बहुत समय लगे जरा संगे खासकर सबसे ज्यादा यूथ जो लोग आज पार्टी के साथ ज्वाइन किए खासकर चालदा करण और आसपास का सब नौजवान साथी को सभी छात्राओं को आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत आपका स्वागत ऐसा हो सकता है होते पारे कि जोनिगे जरा महत्वपूर्ण मानुष जरा महत्वपूर्ण कर्मी तार नाम हमें लेते पारे नहीं तो तारा के अभिनंदन सांगी बेसी अभिनंदन ज्यादा प्रेस मीडिया के हमारे मित्रों का भी स्वागत है आज मेरा यहाँ आना कोविड के बाद चूंकि मेरा यहाँ आना तुरंत परिणाम के बाद रिजल्ट के बाद यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के बाद तुरंत आना था हम इस बात का कोई हमको भय और शंका नहीं है सुनील बाबू आशुतोष बाबू को थोड़ा शंका हो सकता है लेकिन राजनीति में जो स्थान दिया जो जगह मिला है बाघमुंडी का पूरा 61,000 पब्लिक का आज यही मंच है उनको अभिनंदन करने का आपके मैदान से 61,000 पब्लिक 249 बूथ है जिसमें से करीबन 150 बूथ में आजसू पार्टी जीता है कि नहीं परिणाम तो देखो दूसरे तरफ से परिणाम को कलेक्ट करके 249 का हम लोग देखते हैं एक जगह तब देखते हैं कि सामने वाला जीता है तब तृणमूल जीता है लेकिन वोट तो बूथ में होता है अब बूथ सबसे निचला इकाई है तो बूथ जितना ही वोट जितना है तो हम लोग लगभग 150 जगह पर आशुतोष बाबू आजसू पार्टी जीत रहे हैं और उसमें से भी सबसे अच्छा तो टाउन जीता है क्लीन स्वीट है कि नहीं 4,000 वोट से आगे 4,000 वोट लाने के 4,000 आदमी खड़ा नहीं कर सकते वोट जीतने का तरीका लोग राजनीति में अब आजकल राजनीति का विश्लेषण थोड़ा प्रबंधन में ले गए हैं लोग कि মানুষ কত ম্যানেজ করতে পারবে ও জিতবে মানুষটা ভালো সে জিতবে সেটা বলতে পারি না कि है ना वो है डिफिनेशन है और जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में जो देने जा रहे हैं वर्तमान में जो राजनीति हम बहुत करा रहे हैं लोगों जो गढ़ेंगे लोग जो लीडर अभी हम यहाँ बैठे थे तो देख रहे थे कलाम साहब से लेकर महात्मा गांधी से लेकर बहुत सब लोग यहीं पर है इनका फोटो यहीं पर इसलिए टंगा है क्योंकि भारत के पॉलिटिक्स के ये लोग मॉडल है भारत का राजनीति का मॉडल लोग का तस्वीर यहाँ पर खड़ा है और आज के भारत का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं स्टेट का नेतृत्व करें विधानसभा का नेतृत्व करें पार्लियामेंट का नेतृत्व करें कमोबेश उसी परिवेश में उसी जनगण के बीच में ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं पब्लिक वही है लेकिन क्या अपना ईमानदारी से छाती में हाथ रख के वो नेता सोचे क्या इनके सामने हम खड़े हो पाएंगे इनके सामने वो कभी खड़े हो पाएंगे क्या वो लीडर मुख्यमंत्री बन सकता है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं देश कभी चला सकते हैं लेकिन ये कतार में खड़ा होने के लिए ऐसा नेता बनना पड़ेगा तब जाके जगह मिलेगा नहीं तो कितना लोग आया गया किसी को जगह नहीं मिलेगा है कि सच्चाई तो यही है और इसी सच्चाई के साथ आगे राजनीति हम लोग को करना है हम तो हमको याद है विवेकानंद जी का किताब था उसमें बड़ा सुंदर से चीजों को वो तो कभी एमपी एमएलए रहे नहीं
ऐसा नहीं कि वो आइडियोलॉजी पर हम लोग चलते हैं, लेकिन बड़ा ये है कि यूथ के बीच में लोग इतना आकर्षक कैसे हो सकते हैं। यहाँ युवा को तो तरुण बोला जाता है, बोला जाता है ना बांग्ला में, तरुण एक स्वप्न। तो बिल्कुल आज यहाँ पर हम आए हैं कि तरुण संख्या ज्यादा है, और ये भी हमको देखने के बाद ये उत्साह और दुगुना हो जाता है। तो ये कल क्या हुआ, हम कल का रचना करने के लिए आए, हम कल को देखने और उसका विवेचना करने नहीं आए। सुदेश महतो कल का रचना करने के लिए आया, कल का निर्माण करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे, आपको पॉलिटिक्स देंगे, आप 20 साल आगे कैसे करिएगा इसका हम लोग विचारों करेंगे। चुनाव है, पहले तो मेरा आना, क्योंकि चुनाव के बाद लोगों में ये कंफ्यूजन था कि सुदेश दा एक्सपेक्ट की नहीं एक्सपेक्ट, बहुत कंफ्यूजन प्रश्न था, कितना लोग वोट दिया, अरे हमने कोई को की और होवे की नहीं पार्टी, फिर वोटे दिखाओ की। ये कोविड के कारण 1.5 साल पीछे हो गए, हम आ गए हैं और सुदेश महतो यहाँ रहेगा और सुदेश महतो यहाँ का पॉलिटिक्स को मजबूत करेगा, ये तैयार। एक अलग ढंग का आएंगे, भयमुक्त करेंगे। सबसे पहले अभी का क्वेश्चन क्या है, हारा जीता से ज्यादा जरूरी है कि राजनीति को भयमुक्त करना है। पॉलिटिक्स कोई आजादी के साथ कर नहीं पा रहा है, राजनीति में आजादी नहीं है। तो राजनीति तो यही एक चीज है जो अम्बेडकर साहब हम लोग को देंगे। भारत का संविधान का पहला पेज यही है कि इक्वलिटी रहेगा, तो वोट में ना इक्वलिटी दे रहे ना, समाज के अंदर खड़ा होकर इक्वलिटी का कोई बात कोई कर रहा है। तो ये समानता का जो अधिकार है, ये समग्र वर्ग को कैसे यहाँ पर, यहाँ कोई मुक्ति कुछ चाहिए तो समानता का अधिकार, उस पार्ट को फिर से संविधान का पढ़ाना पड़ेगा। ये काम सबसे बड़ा है कि आदमी सोच सकता और कर सके, ये वातावरण यहाँ देना है। इस बीच में एक भाई है, इस बीच में भाई है जिसको लेकर लोग पित रहते हैं। कुछ लोग जैसे झालदा टाउन का बात करें, झालदा टाउन एक एक महिला को भाई मेरी तरफ से बधाई देना, मेरा भाई तो उधर बैठे में खड़ा हो जाइए। एक एक महिला परिवार को आप सभी लोग, झालदा टाउन का लड़का लोग हाथ उठाओ तो थोड़ा, एक एक लोगों को घर में जाना कि दादा प्रणाम जाना चाहिए, खाली एकदम बोलना जरूर, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं तो हम तो पैदल घूमते, अगर ये कोविड का ओरिजिनल आता तो हम पैदल घूमेंगे, हर वार्ड में सुदेश महतो जाएगा, आभार व्यक्त करने के लिए जाएगा, ये तैयार जाएंगे, बैठेंगे आपके साथ और देखेंगे कि ये 15 साल 10 साल 11 साल में हमको क्या मिला है, नली गली में क्या मिला हमको, ये देखने जाएंगे कि मानुष केवल 2-4 लोग भय से रखते हैं, 2-4 लोग बोले रोजी पावे नहीं, रोजगार पावे नहीं। कुछ लोग सरकारी नौकरी का भी बात कर रहे हैं कि नौकरी है कितना, पूरा बंगाल में गवर्नमेंट नौकरी कितना दे सकता है, तो पहले नौकरी निकाल के देखो कि नौकरी है कितना। सरकारी पद कोई खाली होगा तो बचेगा, वहां सरकारी लोग आएंगे। इसके अलावा बड़ा वैकेंसी होता है पुलिस में, और इसके अलावा तो नौकरी का तो कोई जगह नहीं है। और राज्य सरकार नौकरी में अपना पुलिस को बहाली कर रही है, आरबीआई का भारत सुरक्षा बल का जो वो लोग बहाली हो सकता है, तो यहाँ भारत के साथ तो संबंध ही अच्छा नहीं है, वो मांग भी नहीं सकते। तो नौकरी के नाम पर अगर कोई चर्चा करे तो नौकरी, सरकारी नौकरी है ही नहीं, बड़ा लिमिटेशन है। क्योंकि सरकारी नौकरी के बाद अभी अधिकतर लोग नौकरी प्राइवेट में, लिमिटेड प्राइवेट में नौकरी है। लेकिन ये दीदी का विचार तो लिमिटेड कंपनी से अलग है। सिंगूर जैसा घटना, ये सारा जब टाटा जैसा कंपनी आके स्थापित होना चाहा तो आपने कहा टाटा हमको नहीं चाहिए, टाटा नहीं चाहिए, नहीं नौकरी नहीं चाहिए आपने कहा। आज तो उसी जगह पर, वहीं पर जाकर आप देख रहे हैं, उसी जमीन पर आपको हरना पड़ा। ये बात करेंगे, इसलिए कुछ लोग इस टाउन में भी, हमको गया था मेरे पास कि दादा हमारा नौकरी को बढ़ाई दिलो, हमने बोला निकाल देंगे। कुछ लोग गया, लड़का लोग गया था, बोले दादा अच्छी पार्टी कर रहे हैं तो वोट आया ना, तो बोल रहे हैं बढ़ाई दी वो। तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई मेरा कार्यकर्ता को नौकरी का बल देके डरा नहीं सकता है। आप लोग एकदम ही रहो, बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो और रास्ता देखेंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन भाई से वोट झालदा टाउन में नहीं होगा, वोट वही होगा जिस पर पब्लिक विश्वास करता है। और विश्वास आजसू पार्टी पर क्या है, तो आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगा, नगर चुनाव भी लड़ेगा, ये तैयारी करेगा। चलिए हम लोग काम करके दिखाएंगे।
एक एक लोग खड़ा होकर काम करके दिखाएंगे। 150 बूथ जहां बूथ जीते हैं, हमारा कमिटमेंट था कि विधानसभा आप दीजिए, सुदेश महतो काम करेगा। हम उसको खंडित कर दे रहे हैं। जो बूथ जीता है सुदेश महतो का काम वहां ये होगा, ये तैयारी है। और बाकी जगह नहीं होगा, नहीं वहां संगठन बनाएंगे, वहां साथ में लेंगे, बाकी लोग को भी साथ में लेंगे, हम लोग काम करेंगे। आओ राजनीति का नया परिभाषा हम लोग यहाँ गढ़ने का काम करेंगे। पॉलिटिक्स को नया रूप से लोगों के बीच रखने का तैयारी करेंगे। हम लोग सब एक वातावरण पूरा पुरुलिया जिला में बना हुआ है। रोज फोन आता है, दादा एसपीएम को আমরা যদি ফোন করতে চাই, আমরা साथ देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई अब यहाँ पुरुलिया तक नहीं रहेगा। जरूर हम यहाँ तक आए हैं क्योंकि यही तो प्रणाम करने आना था। पहला तो जगह तो झालदा ही ना मेरा, तो यहीं से शुरू होगा सब जगह पर। अब ये ना पुरुलिया टिकेगा ना आगे जाएगा, ये बांकुड़ा मेदिनीपुर तक पहुंचेगा। जो रेखा दिया हुआ है, जो रेखा खींचा हुआ है, वहां तक हमारा विचार का सीमा हम लोग पहुंचाएंगे और ये आवाज कोलकाता तक पहुंचाएंगे। ये तैयारी हम सबका होगा। स्टूडेंट्स रेडी रहो, तैयारी करो, जाओ गांव घर में वातावरण बनाओ कि नया पार्टी, नया सोच के साथ, नया ऊर्जा के साथ नया पार्टी का गठन करके हम लोग सब आगे बढ़े। तैयार है ना सब कोई? तैयार है ना? चलो खेल जुल के आप खेल तो वही खेलेंगे। अभी दादा बोल रहे थे खेल से नाराज नहीं होना, खेल से नाराज नहीं होना। हम लोग खेलते खेलते यहाँ तक आए। हम लोग खेल खेलेंगे, लेकिन ये राजनीति का गंदा खेल नहीं खेलेंगे। खेल असली खेल होगा। अगर उनको दीदी को फुटबॉल से प्यार है तो सुदेश महतो फुटबॉल का बेहतर खेल कराएगा। ये उसमें तो प्रश्न खड़ा हो गया। कोलकाता का 3-4 प्रमुख क्लब होता था, क्लब कहाँ चला गया? पुरुलिया झालदा में हमारा कितना क्लब होता था? क्लब का स्थिति क्या है? आपको देखना पड़ेगा। केवल फुटबॉल होने से खेल नहीं होता है। आपको क्लबों को आपने मार दिया, क्लब जिंदा नहीं है। आगे सब जितना भैया लोग हम लोग यहाँ झालदा में थे, कितना अच्छा क्लब चलता था। एक एक खिलाड़ी वो उस लेवल का होता था। पुरुलिया का से लेकर कोलकाता तक में जो खेल का प्रभाव था, फुटबॉल का जो एकाधिकार था, वो तो ले गया गोवा, केरल ले गए और मणिपुर ले गए। हम ला कहां पा गए? हमारा प्लेयर देखो ना, आई लीग हो रहा है, उसमें कितना हमारा लड़का है और कहां का लड़का ज्यादा है। देखो हरियाणा पंजाब का लड़का ज्यादा आ गया फुटबॉल में। हम कहां हैं? कितना लड़का हम भेज पा रहे हैं? उसकी गुणवत्ता का क्या हुआ? तो स्पोर्ट्स में ही बात होगा। तो लेकिन स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का बात होगा, खेल का बात होगा। क्यों नहीं हम दूसरा खिलाड़ी पैदा कर पा रहे हैं? इस पर हम लोग बात करेंगे। गांव में खेल होगा, खेलेंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, पढ़ाई के लिए काम करेंगे। सबसे अच्छा है पढ़ाई, कि पढ़ाई पे काम करेंगे, स्पोर्ट्स भी चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग कैसे अपने लोगों के यूथ के बीच में हम लोग क्रिएट जॉब कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बैठ के प्लान करेंगे। जरूरत पड़े तो मल्टी लोग जो लोग अभी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके साथ भी आपके साथ बैठ के प्लान करने का काम करेंगे। कैसे हो सकता है? एक म्युनिसिपलिटी, एक छोटा मेरा गांव है झालदा, इसको हम लोग म्युनिसिपलिटी कुछ लोग बनने नहीं दे रहे हैं। म्युनिसिपलिटी नहीं बनने दे रहे हैं, इसको कोई एक आदमी 2 आदमी अपना बना के रख लिया है कि मेरे हिसाब से चलेगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। इसको भूलने का, खेलने का ही मौका नहीं देते। कभी वार्ड लोग जीतता भी है तो उसको उठा के लेके चले जाते हैं। एक बात तो सुनते हो, क्योंकि गरीब है ना, वो गरीब है तो उसको लोभ देते हैं। लोभ देके उसका जो बहुमत है पब्लिक का, उसको बेकार कर देते हैं। पब्लिक सोचता है अभी नहीं अगली बार देखेंगे, एक बार कोते नहीं पल्ली जो मनुष्य के जीतल से मनुष्य का बिकाएंगे। मनुष्य ठगा जाता है। मनुष्य को अगर वोट देना रहता उनको तो उन्हीं को देता ना, उसी पार्टी को देता। उस पार्टी को नहीं दिया माने पब्लिक का विचार नहीं है उसके साथ, मेरा विचार नहीं मिलता है, नहीं देंगे। वो जानता है कि शासन नहीं, फिर भी नहीं दिया। अगर नहीं दिया उसके बाद क्या होता है? मेंबर जीतने के बाद मेंबर उधर चला जाता है। तो जितना एक म्युनिसिपलिटी में कितना लोग का वोट होता है? 1000, 500, 1000। तो 500 लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। वोट तो सम्मान है ना। एक हम लोग मान लो, एक तो हम लोग अभी 200, 300, 400 आदमी जो भी है, हम लोग का एक मत को कोई जाके प्रमाणित कहीं पर खराब कर देगा तो ये सबका सम्मान गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं? तो ये सम्मान बचाना ज्यादा जरूरी है। कि यदि एक गरीब मनुष्य भावे कि हमार सुदेश महतो हमार नेता, आजसू पार्टी हमार नेता, तो मानुषের भावनाটা 5 साल আমরা स्वीकार করে और सम्मान করবো। ये काम हम लोगों को करना है, उसका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, गरीब से गरीब व्यक्ति। आओ नया तरीका से राजनीति को गढ़ेंगे हम सब। आप सभी का सम्मान, अभिमान आपका पार्टी है और आपको
और इस क्षेत्र के भविष्य को गढ़ने में जो लोग छूट गए हैं, जो लोग को हम लोग जोड़ नहीं पाए, जरा के हमरा संगे करते पारली नहीं, से मनुष्य के लगे हमरा व्यवहार ही जीतना। किससे जीतेंगे? व्यवहार से जीतेंगे, खाना से नहीं। खाना से नहीं और खाना से नहीं। किससे जीतेंगे? व्यवहार से जीतेंगे। उसके दिल में लोग जीत के राज करेंगे। ये आजसू पार्टी का फिर से 61,000 मतदाताओं को अभिनंदन करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अतुल बाबू मास्टर साहब और उनके पूरे टीम को पुनः बधाई। अतुल बाबू आज से लोकल गार्जियन हो गए पुरलिया जिला का। अब किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा, अतुल बाबू एक अनुभवी व्यक्ति वहां खड़ा होगा, न केवल वैचारिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी आपको साथ देने का काम करेंगे। ये तैयारी हम लोग सब करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। तो एक बार नारा करते पारी ना कोविड मना नहीं किया ना पक्का तो देखिए आजसू पार्टी जिंदाबाद तो होना चाहिए, होना है ना। चलो खड़ा हो जाओ सब कुछ। राजेश अच्छा बोलता है, बहुत बोलता है। आज दियो में मिले को